Good morning, students. Once again, I am here for our political science class. We are doing chapter 2, Rights in the Indian Constitution. In our last class, we have discussed right to life and personal liberty. Means we have seen right to freedom, in which we came to know about right to life and personal liberty, and we have also seen preventive detention and rights of an accused person. Today we will do right to freedom of religion. According to our constitution, everyone enjoys the right to follow the religion of his or her choice. According to our constitution, everyone in our country has right to choose any religion of his or her choice. This freedom is considered as a hallmark of democracy. Freedom of religion is considered as hallmark of democracy, means it is possible only if there is democracy in a country. Historically, there were rulers and emperors in different parts of the world who did not allow residents of their countries to enjoy the right to freedom of religion. आज भी बहुत सारी कंट्रीज़ में जो सिटीजन्स हैं उनको यहाँ पर मोनार्की है, वहाँ के सिटीजन्स को अपने रिलीजन को फॉलो करने की उतनी छूट नहीं है जितना उस कंट्री के रिलीजन को. Persons following a religion different from that of the ruler were either persecuted or forced to convert to the official religion of the rulers. Ancient time में जो रूलर होता था फोर्स करता था कि जो सिटीजन्स हैं वो उसके रिलीजन को अडॉप्ट कर लें, अदरवाइज जो ऐसा नहीं करते थे उनको पनिशमेंट भी मिलती थी. Therefore, democracy has always incorporated the freedom to follow the religion of one's choice as one of his basic principles. So, in democracy, one of the basic principle of democracy is freedom of religion. Every person in a democratic country has right to choose his or her religion. Now, freedom of faith and worship in Indian Constitution. In India, everyone is free to choose a religion and practice that religion. In India, everyone is free to choose any religion and practice the same. Freedom of religion also includes the freedom of conscience. This means that a person may choose any religion or may choose not to follow any religion. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ रिलीजन में फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस भी शामिल है. फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का मतलब अंतरात्मा की आवाज़, अगर उसकी भी हमें फ्रीडम है, हम चाहें तो कोई रिलीजन अडॉप्ट करें और अगर चाहें तो कोई भी रिलीजन ना फॉलो करें, मतलब किसी भी रिलीजन को फॉलो ना करें. दोनों ही राइट हमारे पास हैं. फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स the freedom to profess, follow and propagate any religion.
और रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं? उस रिलीजन को मानना, फॉलो करना और उसको प्रोपोगेट करना, उसको बढ़ाना। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस। लेकिन जैसा हमने देखा कि बहुत सारे फ्रीडम्स जो हैं वो सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस हैं, वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस के साथ है। द गवर्नमेंट कैन इम्पोज restrictions on the practice of freedom of religion in order to protect public order, morality and health. Government can impose restriction on the ground of public order, protection of public order, morality and health. This means that the freedom of religion is not an unlimited right. It is not absolute right, not unlimited right. The government can interfere in religious matters for rooting out certain social evils. For example, in the past, the government has taken steps banning practice like sati, bigamy, or human sacrifice. Such restrictions cannot be opposed in the name of interference in right to freedom of religion. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में अपने किसी भी चॉइस के रिलीजन को मानने, उसको फॉलो करने और उसको प्रोपोगेट करने का राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिला हुआ है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में मिले हुए ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे प्रोविजंस के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए, वो इमोरल नहीं होने चाहिए और सिटीजन्स के हेल्थ को अफेक्ट करने वाले नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट उस पर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एंशिएंट टाइम में हमारे यहाँ सती प्रथा थी। बाइगेमी मीन्स एक से ज़्यादा शादी, और ह्यूमन सेक्रीफाइस, आदमियों का बलिदान, बच्चों का बलिदान, ठीक है, उनकी बलि चढ़ाई जाती थी। इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। हमारा रिलीजन इसकी आज्ञा देता है ये कह के हम कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अगेंस्ट कोई, और ऐसे इसमें गवर्नमेंट कैन इंटरवीन। द लिमिटेशंस ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑलवेज प्रोड्यूस टेंशंस बिटवीन फॉलोअर्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स एंड द गवर्नमेंट। और जब लिमिटेशंस लगाए जाएंगे तो ऑब्वियसली उस रिलीजन के फॉलोअर और गवर्नमेंट के बीच में कई बार बहुत टेंशन भी क्रिएट होता है। When the government seeks to restrict some activities of any religious group, people of that group feels that this is interference in their religion. जब भी कोई ऐसा मामला आता है जिसमें कोई इमोरलिटी हो रही हो या कोई भी इलीगल प्रैक्टिस हो रही हो और गवर्नमेंट अगर उसको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करती है तो कई बार इसका अपोज भी इसको किया जाता है और उस रिलीजन को मानने वाले लोग ये कह के कि गवर्नमेंट उनके रिलीजियस फ्रीडम में इंटरवेन कर रही है, उसका अपोज भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आपने ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल देखा है? हाँ, जैसे अभी गवर्नमेंट ने 3 तलाक का जो मैटर था उसको इलीगल बनाया
उसको पनिशेबल ऑफेंस के अंदर किया कि कोई भी इंसान, कोई भी मुस्लिम एक बार में 3 बार तलाक बोलकर वो अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दे सकता। और गवर्नमेंट के इस एक्शन का अपोज भी बहुत हुआ। उसी तरह पुराने समय में जब सती और बाइगेमी, इन सारी चीज़ों पर भी रोक लगाई गई, और तो उस वक्त भी सोसाइटी में बहुत सारे लोगों ने अपोज किया था। फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिकम अ मैटर ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी फॉर येट अनदर रीज़न। हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो कई बार दूसरे कारणों से भी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का मैटर बन जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गारंटीड द राइट टू प्रोपोगेट वंस रिलीजन। दिस इंक्लूड persuading people to convert from one religion to another. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम टू रिलीजन के अंतर्गत हमें राइट टू प्रोपोगेट ऑफ वंस रिलीजन भी देता है। मतलब हम अपने रिलीजन को चाहे तो वो फैला भी सकते हैं, बट ये प्रोपोगेट करने का मतलब हमारी बातों से इम्प्रेस होकर अगर कोई हमारे रिलीजन को अडॉप्ट करना चाहे तो उसका स्वागत है। लेकिन हमारे यहाँ इसका मिसयूज़ कई बार इस तरह से भी होता है कि लोग फोर्सफुली कन्वर्जन कराने लगते हैं। However, some people resent conversion on the ground that these are based on intimidation or inducement। और इसलिए बहुत सारे लोग ये फोर्सफुल कन्वर्जन को, जो इंड्यूस करके कन्वर्जन कराया जाता है, उसका विरोध भी करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ फोर्सिबल conversions. It only gives us the right to spread information about our religion and thus attract others to it. कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फोर्सफुली कन्वर्जन का ऑर्डर नहीं देता। वो सिर्फ इस बात की परमिशन देता है कि हम अपने रिलीजन की अच्छी चीज़ों को, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, और दूसरा अगर उससे अट्रैक्ट हो तो ये उसका विषय है कि वो उसको अपनाए या ना अपनाए। नाउ इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। Being a country which is home of several religions, it is necessary that the government must extend equal treatment to different religions. हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पर बहुत सारे रिलीजन हैं, तो ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट सारे रिलीजन वालों के लिए इक्वल ट्रीटमेंट करे। In negative term, we can say it means that government will not favor any particular religion. India does not have any official religion. We don't have to belong to any particular religion in order to be a prime minister or president or judge or any other public official. इंडिया का अपना कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट बनने के लिए, प्राइम मिनिस्टर, जज बनने के लिए या कोई भी पब्लिक ऑफिशियल होने के लिए किसी पर्टिकुलर रिलीजन का होना ज़रूरी नहीं है। वी हैव ऑल्सो सीन दैट अंडर दिस राइट टू इक्वालिटी देयर इज़ अ गारंटी दैट गवर्नमेंट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन गिविंग एम्प्लॉयमेंट। और ये चीज़ हमने राइट टू इक्वालिटी में भी देखा कि गवर्नमेंट किसी के साथ रिलीजन के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। द इंस्टीट्यूशंस रन बाय द स्टेट
will not preach any religion or give religious education, nor will they favor person of any religion. जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो कि स्टेट के द्वारा रन किए जाते हैं, वो किसी भी रिलीजन को न तो फेवर करेंगे, न तो कोई रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, और न ही किसी रिलीजन के किसी रिलीजन के लोगों को फेवर करेगा. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज प्रोविज़न इज़ टू सस्टेन एंड नर्चर द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म. और ये जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे, ये एक तरह से प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल है, रीज़न है. दैट मीन्स इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री which treat every religion equally, and it has no official religion at all. Dear student, this is all about freedom of religion. In our next video, we will discuss other fundamental right.